So if you see, embedded systems are becoming now an inevitable part or in our life as it extends from the household appliances to the telecommunication sector, the medical equipment, industrial control, consumer products. Nowadays, nowadays, I think that no area is left where you find an embedded system. Embedded systems are present now in every sphere of your life. If you move in your house, you will find that you have an embedded system in smart TV, in your mobile phone, in your speakers, routers. If you move to the kitchen area of your home, you will find embedded system in your refrigerator, in microwave oven, in the washing machine, and dishwashers. So there are no area left where you cannot find an embedded system. Means embedded system are so prominently now be the part of the life. So that is why it is a very important subject to discuss. If we move to the IEEE definition of embedded system, then IEEE define embedded system as a device that is logged in other system and perform some specific task. Means IEEE define the embedded system as a device which is logged as, which is used as to perform a specific task in a particular system. And as you see this in diagram, the system gets some inputs, and on the basis of that system, on the inputs, the software and hardware components react to that inputs and do some specific task and give it as the output. So if you see closely in this embedded diagram, the block which is written as embedded system, here it is a combination of software components as well as hardware components, and they both are working in collaboration to do some specific task. तो एम्बेडेड सिस्टम को अगर कहें तो एम्बेडेड सिस्टम एक तरह का डिवाइस है, एक तरह का डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है जो सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। और ये सर्टेन टास्क जो है वो पहले प्री डिफाइंड है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम की, कि किसी भी एम्बेडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एम्बेडेड सिस्टम की क्या है। अगर उसकी बात करें तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज लिमिटेड मेमोरी एंड लिमिटेड पेरिफेरल्स। मींस एम्बेडेड सिस्टम की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत बड़ी मेमोरी उसकी नहीं होती है, बिकॉज normally embedded systems are small systems and that requires very less information or very less input or very less intermediate results to store. So they don't require any large memory system to do the task. They are only intended to do some specific tasks, one or two tasks. So they won't require large memory. They also won't require a lot of peripherals as they have to do some limited tasks. तो उनके पेरिफेरल्स भी उनको कम रिक्वायर्ड होते हैं।
कुछ ही पेरिफेरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ ही डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं जो उनके साथ इंटरकनेक्ट होती हैं और किसी फंक्शन को परफॉर्म करती है। सेकंड जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है दे शुड बी डिजाइन टू ऑपरेट एट लो पावर, क्योंकि पावर एक मेजर कंस्ट्रेंट हो जाता है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम का। मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम आर ऑपरेटेड ऑन बैटरीज। तो जब भी आप किसी ऐसे एम्बेडेड सिस्टम को प्रोड्यूस करने जा रहे हो, डिजाइन करने जा रहे हो, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, तो इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि उसका पावर ऑपरेशन यानी कि उसको रिक्वायर्ड पावर कितनी है, कॉन्टिन्यूसली वो कितने पावर को यूज कर रहा है, उसका पावर डिसिपेशन फीचर आपने ध्यान रखा है या नहीं, पावर आप कैसे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रोवाइडिंग पावर फ्रॉम द पावर सप्लाई which is coming in your home or in your industry or in your organization, or it is totally dependent on the portable power system such as battery operated। तो पावर के रिक्वायरमेंट एम्बेडेड सिस्टम के लिए एक मेजर इशू होती है। और वैसे भी क्योंकि अभी हम लोग पावर इफिशिएंट सिस्टम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लो पावर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं कि लेसर पावर यूज करें, फ्यूल कंजम्पशन को बचाएं, तो लो पावर डिजाइन को प्रिफर किया गया। तीसरा जो इसका फीचर है एम्बेडेड सिस्टम का, जो इसको एक तरह से कहें तो स्पेशल बनाता है, खास बनाता है, दैट इज हाईली रिलायबल, स्टेबल एंड सेफ। नो व्हाट इज हाईली रिलायबल? हाईली रिलायबल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फॉर व्हाट पर्पस इट इज डिजाइन, इट शुड परफॉर्म दैट पर्पस फॉर अ वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम कोई प्रोडक्ट अगर लेके आते हैं तो वो प्रोडक्ट एक सर्टेन ड्यूरेशन तक उस एंड यूजर को, उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को वो इंटेंडेड फंक्शंस परफॉर्म करके देता रहेगा जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता जिसके लिए वो बनाया गया है, और जो ड्यूरेशन आपने जिसके लिए उसको इंटेंडेड फंक्शन को बनाया था कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा, उतने ड्यूरेशन के लिए वो नहीं काम कर पा रहा अपने उस फंक्शंस को, तो उसकी रिलायबिलिटी पे अफेक्ट होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम शुड बी डिजाइन टू बी हाईली रिलायबल होने चाहिए, वो उन फंक्शंस को परफॉर्म करनी चाहिए, वो उन ड्यूरेशंस तक परफॉर्म करनी चाहिए जिसके लिए वो डिजाइन किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। स्टेबल होना चाहिए और सेफ होना चाहिए फॉर यूज। जो कस्टमर उसको यूज कर रहा है, जो क्लाइंट उसको यूज कर रहा है, उसकी सेफ्टी एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, कि वो सिस्टम खुद में भी सेफ हो और यूजर के लिए भी सेफ हो, इसका ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि उसमें हम कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो यूजर के लिए खतरनाक हो जाए, उस एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो जाए जहां पे वो यूज किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और टास्क। तो ये तो एम्बेडेड सिस्टम के डेफिनेशन में ही है कि हम एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन ही करते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगर कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाया गया और वो अपने जिस पर्पस के लिए बनाया गया उस पर्पस को ही नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो उसकी पूरी जो है फंक्शनैलिटी पे फिर एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है कि वो उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम यूजर इंटरफेस एंड कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस। कैसे यूज किया जाए किसी मशीन को, किसी प्रोडक्ट को, ये जितना आसान होगा
उस प्रोडक्ट के बिकने की संभावना, उस प्रोडक्ट के मार्केट होने की संभावना, उस प्रोडक्ट के ज्यादा यूज होने की संभावना बढ़ जाती है। जितना कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस होगा उतना ही एंड यूजर के लिए दिक्कत भरा होगा उसको यूज करना। तो कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए किसी एम्बेडेड सिस्टम के यूजर इंटरफेस को, यानी कस्टमर जब यूज करने जा रहा है तो बहुत सारे अननेसेसरी बटन्स, बहुत सारी अननेसेसरी स्विचेस उसमें आप ना डाल दें, बहुत सारे प्रोसेस ना डाल दें जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाए कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज शुड मीट द रियल टाइम कंस्ट्रेंट। रियल टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैंने किसी मशीन को, वॉशिंग मशीन में टाइमर एक फिट किया वॉशिंग के लिए कि इट स्टार्ट वॉशिंग एंड डू वॉशिंग अप टू 5 मिनट्स। अब मैंने टाइमर सेट कर दिया, लेकिन टाइमर ने अपनी फंक्शनैलिटी उसी समय से ना शुरू करके 1 2 मिनट 2 मिनट का डिले किया करने में, तो ये रियल टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगा। मैंने उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि भाई 5 मिनट्स में वॉशिंग करनी है, तो इट शुड टेक एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू वॉश इट। It is not acceptable that the machine start washing after 4 or 5 minutes and do washing up to 10 minutes rather than 5 minutes. Then it is not functioning in the real time. दूसरी चीज यहीं पे आ जाती है कि रिएक्टिवनेस। आपने इनपुट दिया और उस इनपुट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है। मैंने कोई स्विच ऑन किया और कोई फंक्शन नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर एक बल्ब, एक एलईडी ऑन हो, पर वो ऑन नहीं हो रहा, तो ये रियल टाइम कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं कर रहा। तो रियल टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब ये हुआ कि जिस भी फंक्शन के लिए हमने उसको डिजाइन किया है वो पर्टिकुलर फंक्शन उस टाइम ड्यूरेशन में एग्जैक्टली वो उस फंक्शन को परफॉर्म करे, और ऐसा रिपीटिटिवली वो करता जाए जब तक कि जिस ड्यूरेशन तक के लिए उसको परफॉर्म डिजाइन किया गया है। यानी जिस जो भी आपने उस प्रोडक्ट के लिए जो एक टाइम बनाया है कि प्रोडक्ट इतने साल चलेगा, उतने समय तक उसको ये फंक्शन उसी इंटेंडेड टाइम ड्यूरेशन में करने हो और वो ऐसा करता जाए, तो कहा जाएगा कि वो रियल टाइम कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहा है और रिलायबल भी। शुड बी डिपेंडेबल। So if all the above features a embedded system have, then it certainly be comes under the class of dependency कि वो डिपेंडेबल है, हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं, हम उसे यूज कर सकते हैं फॉर अदर पर्पस। So these are a very common characteristics of embedded system. अगर कंपैरिजन करें कि एम्बेडेड सिस्टम और जनरल कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये कैसा डिफरेंस का है, तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एम्बेडेड सिस्टम एंड जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम। तो फिर आपको पैरामीटर वाइज, क्राइटेरिया वाइज उसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसी तरह से अगर पीछे की बात करें, पीछे वाली स्लाइड की, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो अगर बात करें कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आप एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो पहला जो आता है दैट इज कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस टू मेक दिस सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम में अगर देखें तो लिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स उन हार्डवेयर्स को यूज करके और उसके अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो सॉफ्टवेयर रखा है उसको यूज करके एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एप्लीकेशन को ही परफॉर्म करेंगे।
यानी कुछ ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ हार्डवेयर और लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ओएस यूज होता है। वहीं अगर बात करें जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम की, तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम कॉम्बिनेशन है जेनरिक हार्डवेयर का, लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेयर आर नीडेड देयर, और उसमें एक बिगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, because general purpose computing system has to do a variety of applications, large number of applications, varied nature of applications. तो जैसे हम लोगों ने बात की कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं, तो सेकंड पैरामीटर अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर उसके बेसिस पे, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करना हो, तो sometimes embedded system have an operating system and sometimes they don't have, they won't have, they don't need any operating system for functioning. But in case of general purpose operating system, it should have, उसमें होना ही चाहिए एक general purpose operating system which is rather big and large in comparison to an operating system used in embedded system. Alterations, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो क्या अल्टरेबल है, क्या उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अगर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करें तो एप्लीकेशंस आर अल्टरेबल, प्रोग्रामेबल, आप उसके प्रोग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, because you have the liberty, as there are plenty of components used, so there is a liberty to the user, to the programmer, to design it in a more advanced way, more ways to operate it, and there is always a possibility to change it, change in the operating system. You can reinstall the operating system, add or remove some part of the user applications. So there is always a chance. जैसा आप अपने पीसी में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, तो आप कुछ प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, कुछ को अनइंस्टॉल करते हैं, और ये प्रोसेस आप करते रहते हैं। आप उसमें कभी अगर आपने कोई डेल की या एचपी की या कोई भी लेनोवो की आपने कोई लैपटॉप लिया है, तो आप उसमें अपने ओएस को चेंज करते रहते हैं। Sometimes you use Windows 8, sometimes Windows 10, sometimes some Office, MS Office you are using. You can use on your own choice that whether you want Photoshop or not, Corel Drawing or not. So it's up to user to decide what sort of operating system, what sort of application software he or she needed. Whereas in case of embedded system, once the system is designed, once the operating system is embedded in it, now it is not possible to alter it. It is non-alterable at the end user. एक बार आपने वॉशिंग मशीन ले आई, जो उसका पर्पस था, जो उसमें एम्बेडेड सिस्टम में अपने जो मैन्युफैक्चरर ने डाल के दिया था, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द एंड यूजर टू अल्टर द प्रोग्रामिंग पार्ट, आप उसको प्रोग्राम को बदलाव नहीं कर सकते। देन कम्स द की फैक्टर्स। परफॉर्मेंस इज द की डिसाइडिंग फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ द सिस्टम। तो चूंकि परफॉर्मेंस ही निर्धारण करेगा कि सिस्टम बेटर है या नहीं, तो आज के दौर में अगर तेजी से कोई भी काम हो रहा है, फास्टर इट इज देन बेटर। तो जो भी सिस्टम तेज गति से काम कर रहा है, काम को तेजी से परफॉर्म कर रहा है, उसको कहा कि ये फास्ट है, ये अच्छा है, ये बेटर है। जो स्लो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है। जबकि एम्बेडेड सिस्टम में अगर बात करें तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए गए होते हैं, तो वहां पे जो उनको चूज करने की बात आती है वो उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है, उनके मेमोरी यूजेस पे डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ कि क्या है ये,
तो जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हैं, सो इट कम्स अंडर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम। अब आप वहां पे देखते हैं कि कितना फास्ट उसका प्रोसेसर है, कितने सारे परफॉर्मेंसेस वो कर पा रहा है, उसके ग्राफिक कार्ड्स कैसे हैं, उसमें गेम्स कैसे चल रहे हैं, क्या ये जो अभी रिसेंट और भी जो लैपटॉप्स हैं उनसे बेटर है। तो आप वहां पे उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जबकि जब आप एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट किसी लेने जा रहे हैं, तो वहां पे आप उसके परफॉर्मेंस को जब चेक करते हैं, तो वो क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है। जैसे आपने एक वॉशिंग मशीन ली, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, अब कई कंपनी की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो अब आप उसमें डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को चेक करते हो कि क्या उसमें वॉशिंग करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्या उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उस मशीन से थोड़ी कम या ज्यादा है, पावर रिक्वायरमेंट्स की रेटिंग आप चेक करते हैं कि 4 स्टार है, 5 स्टार है, क्या मेमोरी यूजेस भी उसके में हैं कि वो पहले के कुछ डेटा को रखे कि इफ आई यूज to wash cotton clothes, then what sort of timing duration it's needed for washing, for drying, for other purposes. So these are the deciding factors when you use a embedded system. If we talk about the criteria under power consumption, certainly general purpose computing system has is a requirement of more power consumption because they are using more number of devices, more number of components in comparison to embedded systems. So naturally, the general purpose computing system needs more power, whereas in embedded system, the power requirement is less. When we talk in the criteria of response time category, then general purpose computing system is not so critical, although it is critical, but it is not so critical. आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, वो 1 सेकंड की देरी से 2 सेकंड की देरी से भी स्टार्ट हो तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। But when you are using an embedded system for rocket launching, for missile launching, ऐसे स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए अगर आप कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं, तो वहां 1 सेकंड या 2 सेकंड की भी डिफरेंस, क्या डिले, आपके इंटायर मिशन को अफेक्ट कर सकता है। सो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर सम एप्लीकेशंस व्हेन यू यूज एन एम्बेडेड सिस्टम। एग्जीक्यूशन की बात अगर करें, तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम नीड नॉट बी डिटर्मिनिस्टिक। एग्जीक्यूशन हुआ, फाइल पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट हुई, in some laptops, in some PCs, in some system, it may take some lesser time. In some other system, it may take some larger time duration. But where, if you consider embedded system, in certain types of embedded system, it should be deterministic. क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे एम्बेडेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक एम्बेडेड सिस्टम को बना रहे हैं, तो उसमें आपको पहले से ही डिटरमाइन करके रखना होगा कि आफ्टर दिस मच ऑफ सेकेंड्स, दिस मच ऑफ टाइम ड्यूरेशन, दिस मच ऑफ मिनट्स, फर्स्ट स्टेज ओवर हो जाएगा और सेकेंड स्टेज के लिए फ्यूल इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट मच ऑफ टाइम थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इसलिए जब हम लोग कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं या स्पेस रिलेटेड अगर कोई भी एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक है कि वो अप्रोच जो है वो बिल्कुल उसी टाइम ड्यूरेशन में वो चीज होनी चाहिए। उसमें जरा भी बदलाव उससे परेशानी ला सकता है। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें,
एम्बेडेड सिस्टम की स्टार्टिंग कब से हुई, ग्रेजुअली कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, अभी हम किस पोजीशन पे हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम वेयर एग्जिस्टिंग बिफोर द आईटी हैड इट्स प्लेस इन द मार्केट। तो एम्बेडेड सिस्टम तब भी था जब अभी आईटी इंडस्ट्री इसमें आनी स्टार्ट हुई थी मार्केट में। वेल बिफोर दैट एम्बेडेड सिस्टम इज इन द मार्केट। और कब से, जब वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज हुआ करती थी। इनिशियली वैक्यूम ट्यूब्स वेर यूज्ड इन डिजाइनिंग द एम्बेडेड सिस्टम and they were programmed using the low level programming languages। और उन वैक्यूम ट्यूब्स को प्रोग्राम किया जाता था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके। तो अगर ऑथेंटिकली एक एग्जांपल लेना हो तो 1960 में एमआईटी ने, चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर ने पहला मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, जिसने गाइड किया था अपोलो मिशन को। 1961 में ऑटोनेटिक्स D17 डेवलप हुआ। फिर कैलकुलेटर्स के लिए स्टार्ट हुए, इंटेल ने डिजाइन किया 4004। तो पहला माइक्रो कंट्रोलर था जो कैलकुलेटर्स के लिए डिजाइन किया गया, विच इज यूज्ड टू डू सम कैलकुलेटिंग टास्क इन कैलकुलेटर। 70s में ऑटोमोबाइल फील्ड्स में इसका यूज स्टार्ट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज स्टार्ट हुआ। माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जो है वो फ्यूल एयर मिक्सर को कंट्रोल किया जाता था, उसका इग्निशन टाइम कंट्रोल किया जाता था, उसकी इंजन टाइमिंग को देखा जाता था। तो 70s में ऑटोमोबाइल की फील्ड में एम्बेडेड सिस्टम के यूज स्टार्ट हो गए थे। प्रेजेंटली तो हम देखते हैं कि हमारे जो गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर्स हैं, उसमें एक नहीं बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम लगे होते हैं। इग्निशन के लिए अलग, एयर प्रेशर चेक करने के लिए अलग, फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है उसको चेक करने के लिए अलग, स्पीड वेरिएंस को चेक करने के लिए अलग, पावर ब्रेकिंग, पावर विंडोज, ऑटोमेटिक विंडो क्लोजिंग, ये सारा कुछ जो है अब वो नए तरह के एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो अभी तो फोर व्हीलर्स में आप देखें तो ड्राइवरलेस कार आ गई। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है? किसी न किसी एम्बेडेड सिस्टम की वजह से हो रहा है। इन 1980s, बिफोर दैट, इन 1974 पहला माइक्रो कंट्रोलर टेक्सास ने बनाया। इस माइक्रो कंट्रोलर में रैम, रोम और क्लॉक सर्किटरी उन्होंने यूज की। 1980s में 8051 माइक्रो कंट्रोलर आया और 8051 ने बहुत चेंज किया। उस समय इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसमें बहुत सारे बदलाव 8051 के थ्रू आए। एक तरह से कह लें तो रिवॉल्यूशनाइज किया उसने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड को। और उसी के समय के करीब करीब लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स भी आ गए मार्केट में। तो उसने, उन प्रिंटर्स ने प्रिंटिंग की फील्ड में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। 1990s में हम लोगों ने देखा कि स्मॉल पेजर्स आ गए। 2000 और 2000 के बाद का एरा सेलफोन्स का, उनके बहुत सारे को प्रोसेसर्स का जिसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है उनका, इन सब का रहा। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग 2000 और 2000 के बाद के बदलाव को तो देख ही रहे हैं कि अगर आप एक मोबाइल फोन भी लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ही उसी तरह का एक बिल्कुल उससे एडवांस फीचर का नया फोन आ जा रहा है।
तो कितनी तेज गति से एम्बेडेड सिस्टम्स में बदलाव आ रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स में बदलाव आ रहे हैं, उनमें यूज हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन नए प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। ना सिर्फ कम्युनिकेशन की फील्ड में, आप उसको हर एक फील्ड में देख सकते हैं अपने लाइफ से जुड़े हुए। हेल्थ सेक्टर में देख लें, वॉचेस में देख लें, अब आपके पास स्मार्ट वॉच है जिसमें ना सिर्फ समय देखने से लेकर के आपने आप अपने इंपॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। फ्यूल एनर्जी मैनेजमेंट में यूज हो रहे हैं, तो हर एक स्फीयर में यूज हो रहा है। अगला जो पॉइंट है जिस पे हम लोग को बात करनी है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। कैसे क्लासिफाई करें? तो बेसिकली चार तरह के क्लासिफिकेशन बनाए गए एम्बेडेड सिस्टम के। पहला जनरेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट जनरेशन्स पे कंपोनेंट्स के डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह के जनरेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन किए गए। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेस रखा गया वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे था, कितना कॉम्प्लेक्स नेचर का एम्बेडेड सिस्टम है, कौन कौन सी परफॉर्मेंस वो देगा, इनको ध्यान में रखते हुए। तीसरा क्लासिफिकेशन का बेस था डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन। किस तरह का बिहेवियर होगा और उन बिहेवियर के आधार पर क्लासिफिकेशन डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम है कि उनके जो निश्चित बिहेवियर है, निश्चित जो उनका व्यवहार है, अलग अलग एम्बेडेड सिस्टम का उनका काम करने की जो तरीका है, जो शैली है, उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाई किया गया। चौथा जो क्लासिफिकेशन था वो था ट्रिगरिंग। कैसे आप उस एम्बेडेड सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं, हाउ यू अप्लाई क्लॉक इन दैट, whether the clock is level triggered, edge triggered, whether it is triggered at rising edge, whether it is triggered at falling edge. So the classification made on that basis कि with what sort of triggering mechanism is used in the embedded system. So these are the four major categories in which the classification of embedded system is made. So first we will discuss about the two classification, that is the general generation based classification. So generation based classification depends upon the generation of the evolution of different components. So generation, the first generation of components, and the components which is used in first generations are 8-bit microprocessor, 4-bit microcontrollers like 8085, Z80. Some of the hardware circuits were very simple. Arithmetic log ALP have used to build the firmware. Assembly language programming is used there for the software programming. And the example of the embedded system which uses these things like 8-bit microprocessor and assembly language programming and some hardware circuits, are of digital telephone keypads, stepper motors. So these are the embedded system which use these components which is developed in first generation. तो ये कुछ एग्जांपल एम्बेडेड सिस्टम के, जैसे डिजिटल टेलीफोन कीपैड, स्टेपर मोटर्स, जिन्होंने यूज किया 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर को, 4 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स को, कुछ हार्डवेयर सर्किट्स को और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को यूज किया। तो इनको हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम के कैटेगरी में रखा। जब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर की, तो इट यूजेस 16-bit microprocessor या 8-bit का microcontroller. And naturally, as this microprocessor and microcontroller are more advanced than 1G, so it is also more powerful than 1G embedded systems or 1G components. Such components and such programming
used in second generation enable to develop an embedded system like data acquisition system, DAC, DAS system, which is used in analog to digital conversion, SCADA, that is supervisory control and data acquisition system. SCADA is a data acquisition system used in mainly in industrial control applications, such as the industries where you see a lot of boilers, a lot of big machineries involved, big process machineries are involved, heavy metal industries, steel industries. So in this heavy industries, you will find SCADA system. The SCADA systems are the embedded systems which are used to control these functionalities. Third generation of the embedded system uses 32-bit microprocessors, or rather 16-bit microcontrollers. And sometimes they also use domain-specific processors, such as DSPs, digital signal processors, or a different kind of processors, numeric processors. And all these processors and operating system enabled to build the embedded system like robotics, in the fourth generation, 64-bit microprocessor and 32-bit microcontrollers are used. And not only that, multi-core processors are also evolved. तो इन माइक्रो प्रोसेसर को जो 64 बिट के थे, 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स थे, और कुछ और मल्टी कोर प्रोसेसर्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स नेचर के अब एम्बेडेड सिस्टम बनाए जाने लगे। तो अभी जो स्मार्टफोन्स हम लोग यूज करते हैं, आप उसमें देखेंगे तो दो दो तीन तीन प्रोसेसर्स यूज होते हैं। डीएसपी प्रोसेसर कुछ अलग तरह का, न्यूमेरिक प्रोसेसर भी यूज होता है, और एक उसका अपना जनरल प्रोसेसर तो होता ही है। तो दो तीन प्रोसेसर अब एक सिंगल फोन में यूज होने लगे। तो मल्टी कोर प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स नेचर के हो रहे हैं, and due to this they are very powerful. They are now doing lot of functions. So you see that now the smartphones are not less than any computer itself. They can perform all the functions which a simple computer or laptop can do, and that is how happened. That is happened because of evolution in the technology. Next comes the complexity and performance based classification. Embedded system is classified as, embedded system को आप तीन तरह से classify कर सकते हैं: small scale, medium scale और large scale. Large scale कोई कहा sophisticated embedded system. अगर small scale की बात करें तो small scale का मतलब है वो embedded system जो 8 या 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर रहा है, जिनमें थोड़ा हार्डवेयर यूज हो रहा है, लेसर नंबर ऑफ हार्डवेयर आर यूज, और सॉफ्टवेयर जो है वो बोर्ड लेवल डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होता था। और जो टूल्स एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए और यूज हुए वो एडिटर, असेंबलर या आईडीज थे। इनके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे जब हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडिटर, व्हाट इज द रोल ऑफ असेंबलर, व्हाट इज आईडी, व्हाट इज आईसी, व्हाट इज लॉजिक एनालाइजर्स। तो हम इनकी बात डिटेल में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बात रखने की है कि इनका इस्तेमाल करके जो एम्बेडेड सिस्टम बनाए गए
वो स्मॉल नेचर के थे, स्मॉल स्केल नेचर के थे। कॉम्प्लेक्सिटी इनमें कम थी क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर यूज हुए, और जो सॉफ्टवेयर भी यूज हुआ वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का नहीं था। सेकेंड इज द मीडियम स्केल। मीडियम स्केल में 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर की जगह 16 या 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया। रिस्क यूज किए गए या डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स यूज किए गए। इनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर के लेवल पे बढ़ी बल्कि हार्डवेयर के लेवल पे भी बढ़ गई पहले से। सॉरी। जो टूल्स यूज हुए वो एडिटर असेंबलर के अलावा लैंग्वेज के लिए सी यूज हुई, सी प्लस प्लस यूज हुई, जावा यूज हुई, विजुअल सी प्लस प्लस यूज हुए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हुए, डिबगर्स यूज हुए, कुछ सोर्स कोड इंजीनियरिंग टूल्स भी यूज हुए, सिमुलेटर्स इसमें यूज किए गए। तो इन सारे ही सॉफ्टवेयर टूल्स की वजह से और कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हार्डवेयर की वजह से ये जो एम्बेडेड सिस्टम बना उसकी फंक्शनैलिटी भी डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरा जो आया, जो लार्जली यूज होता है, जो बड़े स्तर पे यूज होता है, किसी बड़े पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसको कहा सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। These system uses 32 or 64 bit microcontroller। ये वो सिस्टम थे जो 32 या 64 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हैं। इसमें बहुत बड़े अमाउंट पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो मैसिव हार्डवेयर, दे हैव मैसिव हार्डवेयर इन देमसेल्फ in the project, and to run these hardware the software are very complex nature. Softwares are made on different stages and they are combined to form a entirely big software or operating system for that embedded system. These sophisticated embedded systems are used in high performance mission, critical system के लिए डिजाइन किए गए, और इनमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुई, पीएलएस यूज हुए, और इस तरह के एम्बेडेड सिस्टम आप फ्लाइट लैंडिंग गियर सिस्टम में देख सकते हैं। जो फ्लाइट में लैंड करते समय जो गियर सिस्टम होता है उसमें देख सकते हैं, सैटेलाइट्स में देख सकते हैं, कार की ब्रेकिंग सिस्टम में देख सकते हैं, बहुत सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस में देख सकते हैं, और रोबोटिक्स में देख सकते हैं, जहाँ पे ये सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम्स आजकल यूज किए जा रहे हैं। अगर एप्लीकेशन एरिया की बात करें कि वो कौन कौन से एप्लीकेशन एरिया हैं जहाँ पे फिलहाल हम लोग एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स या एम्बेडेड सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे काउंटलेस डोमेन्स आ जाएंगे, पर कुछ की को हम यहाँ कोशिश करेंगे बताने की। एम्बेडेड सिस्टम का यूज तो अब करीब करीब सारे ही फील्ड्स में हो रहा है। अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कैमकॉर्डर्स, कैमराज, स्मार्ट टीवीज, वॉशिंग मशीन्स। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें तो स्मार्ट टीवीज हैं, डीवीडी प्लेयर्स हैं, फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है। इन सब जगहों पे अब एम्बेडेड सिस्टम का यूज हो रहा है। एयर कंडीशनर्स हैं। थर्ड कैटेगरी अगर कह रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम और होम ऑटोमेशन की, तो स्प्रिंकलर्स,
यानी जहाँ पे सिंचाई की सुविधा के लिए आपने देखा होगा कि सॉइल मॉइस्चर को मेजर करके सेंसर अपने आप ही मोटर को ऑन कर देते हैं और स्प्रिंकलर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैन इंटरवेंशन और यूजर इंटरवेंशन, द सिस्टम इटसेल्फ स्टार्ट वर्किंग। इंट्रूडर डिटेक्शन अलार्म्स हैं, आपके डोर पे लगे हुए हैं। कोई भी अगर एंट्री करता है अनऑथराइज, तो आपको कैमरे के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको पता लग जाता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास लगे हुए हैं, फायर अलार्म्स लगे हुए हैं। ये सभी में एम्बेडेड सिस्टम है जो सेल्फ स्टार्ट होने की मैकेनिज्म रखते हैं, सेल्फ में इनिशिएट हो सकने की क्षमता रखते हैं। देन कम्स द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस इंट्रोड्यूस हुआ, एयर बैग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए, इंजन का कंट्रोल पूरी तरह से अब जो है क्रूज कंट्रोल पे आ गया, इसमें एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए हैं। इग्निशन सिस्टम, ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाना, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना विदाउट पुटिंग द कीज इनटू अ पर्टिकुलर पोजीशन। अब कार स्टार्ट हो जाती है बाय जस्ट प्लेसिंग द कीज इनसाइड द कार, कार को स्टार्ट किया जा सकता है। ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम आ गए, जीपीएस कंट्रोल्स आ गए। तो इन सब ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया। और जो सबसे बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज इन द टेलीकॉम सेक्टर। सेलुलर टेलीफोन्स को देख लें, टेलीफोन के स्विचेस, राउटर्स को देख लें, हैंडसेट्स जो आ रहे हैं उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसको देख लें, हैंडसेट्स में हो रहे हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में चेंजेस देख लें। तो ये हमें बताते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू कितने एडवांसमेंट हो चुका है जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो एम्बेडेड सिस्टम ने करीब करीब ह्यूमन के सारे डोमेन को कवर किया है। अब ये कोई ऐसा डोमेन बचा नहीं जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का हम यूज ना करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा या जानने की कोशिश की कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, किन चीजों से ये बनता है, कैसे ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम से अलग है, क्या क्या इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से इसमें बदलाव आया जैसे जैसे कंपोनेंट्स में बदलाव आए, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन कंपोनेंट से लेकर के फोर्थ जनरेशन कंपोनेंट तक के में जो आए बदलाव थे, उसकी वजह से एम्बेडेड सिस्टम में भी किस तरह का बदलाव आया, तो हम लोगों ने जाना। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो इसके आगे की बात करेंगे कि क्या पर्पस है। जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच एन एम्बेडेड सिस्टम इज इंट्रोड्यूस। तो आज के लिए इतना ही, तो यहाँ पे ही एंड करेंगे इस लेक्चर को। वंस अगेन थैंक टू ऑल ऑफ यू।